Hello students, how are you? I hope all of you are doing perfect at your places. So students, today we will be having our online sessions और online session के benefits बहुत सारे हैं. One being the prime reason, आपको घर के बाहर भी नहीं जाना और आप सारी चीज़ें अपने घर पे आराम से अपने टेबल पे बैठे हुए सब कुछ सीख सकते हो. Now before beginning the session, do you know what my name is? My name is... Right, my name is Simran. So today we will be doing something very interesting chapter of this book, and the topic of this chapter is Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is we need air. तो हवा हमें दिखती तो नहीं है, फील होती है और इसकी हमें ज़रूरत है. Learning objectives, what does air contain and wind properties and uses. Get going, draw arrows to show which way the wind is blowing. अब आपको यहाँ पे arrow जिस साइड पे आपका wind blow करते हुए आपको दिखाई दे रहा है उस साइड आपको arrow कर देना है. पहले वाला आपको given है उस तरफ धुआं जा रहा है तो हवा भी उधर की तरफ ही होगी तो arrow भी उधर की तरफ जाएगा. सेकंड वाले में पेड़ का इधर जा रहा है तो arrow इधर जाएगा. फिर आपका smoke इधर है तो इधर जाएगा. फिर आपका flag right direction में है तो arrow भी right direction में जाएगा. Reading time. There is air all around us. Though we cannot see or touch air, we can feel it. All living things need air to breathe. आसपास हवा है, दिखती नहीं है, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो. सांस लेते हो तो फील होती है, बाल उड़ते हैं तो फील होती है, कपड़े उड़ते हैं तो फील होती है. तो एयर हमारे आसपास हमेशा होती है और सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एयर इंपॉर्टेंट है. Now let's see what does air contain. Air contains water vapor, dust and smoke and germs. Let us see how these things mix with the air. तो आपके एयर में water vapor, अलग अलग gases, dust particles, सारी चीज़ें होती हैं. आप देखते हैं ये mixed किस तरीके से होती हैं. Water vapor. You must have seen water vapor or steam coming out from a boiling pan when your mother cooks food. This water vapor rises up and mixes with air. अब घर पे पानी उबलता है, धीरे धीरे आपका पानी भाप में कन्वर्ट होता है, वेपर्स निकलते हैं और ये वेपर जब एयर में सस्पेंड हो जाते हैं तो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. Water from wet clothes also changes into water vapor and mixes with the air. Similarly, the heat of the sun warms up the water in ponds, lakes and rivers. This water too changes into water vapor and mixes with the air. So we can say that air contains water vapor. Similarly, कपड़े आप गीले कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, थोड़ी देर में सूख जाते हैं. कैसे सूखते हैं? हवा से और धूप से तो सूखते ही हैं, लेकिन ये पानी आपका evaporate हो जाता है, फिर से ये vapors air में जाके mix हो जाते हैं. That's how water vapor का content भी आपको मिलता है हवा में. Science in context. If you weigh all the air in the big room, it would weigh about 70 kgs. एक कमरे में अगर आप उस कमरे की हवा को नापने चलोगे तो करीबन 70 किलो उसका वजन निकल आएगा. Dust and smoke. When people sweep roads and other places, the dust particles mix with the air. Dust particles also mix with the air when strong winds blow. Factories and vehicles release a huge amount of smoke every day. This smoke rises up and mixes with the air. People who smoke cigarettes and BDs also give out a lot of smoke. Dust particles and smoke make the air dirty. अब क्या होता है, रास्ते में झाड़ू लगता है, फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उससे स्मोक आपका एयर में मिक्स हो जाता है. सफाई करने से क्या होता है, आपका डस्ट पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक हमेशा एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं. Germs. When sick people cough, sneeze or spit, germs from their bodies go into the air. When a healthy person breathes this air, germs enter his or her body and makes him or her sick. फिर आपके germs आते हैं. germs कैसे आते हैं? बीमार इंसान है, छींक रहा है, हवा में छींक दिया, germs आपके सस्पेंड हो गए, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं एंड ये आपका जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो सेम बीमारी फिर उसको भी हो जाती है. Breathe clean air. Breathing dirty or impure air is not good for our health. This air can make us sick. We should breathe in clean and fresh air. Plants make the air clean and fresh. We should grow more and more plants. तो साफ हवा को स्मेल करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. अब ये हवा साफ होगी कैसे? जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ की हवा भी साफ रहेगी. तो ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स इन रिटर्न वो हमारी ही हेल्प करेगा क्योंकि हवा को वो प्योरीफाई करेगा. We should play in open places. We should keep doors and windows open to let in fresh air. We should not cover our faces when we sleep. आप कैसे कैसे आप ये फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सकते हो? ओपन एरियाज में खेलिए जहाँ पेड़ ज़्यादा हैं.
अपने घरों में दरवाजों और खिड़कियों को थोड़ी देर के लिए, और खिड़कियों को तो दिन भर एटलीस्ट खुला ही रखिए ताकि सनलाइट तो आए, उसके साथ साथ फ्रेश एयर भी अंदर आए। और उसके अलावा जब आप सोते हो तो मुंह को ढककर आपको नहीं सोना है। आप जब ब्रीद आउट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो, बहुत देर तक ढक के सोओगे तो बेहोशी आ जाएगी। तो हमेशा चद्दर को नीचे, फेस आपका बाहर। Moving air. Moving air is called wind. When air moves, we say that wind is blowing. If a wind blows gently, it is called a breeze. Sometimes the wind blows fast and strong, and fast and strong winds can cause storm. Very strong and violent winds in the sea can cause cyclones and hurricanes. अब आपका क्या होता है, जो आपकी हवा चलती है, we call it विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यही विंड जब बहुत धीमी धीमी चलती है, जब आपके हल्के हल्के बाल उड़ते हैं, हल्के हल्के आपके कपड़े उड़ते हैं, वी कॉल इट ब्रीज। यही विंड जब बहुत तेजी से उड़ने लग जाती है तो उसको स्टॉर्म बोलते हैं। और जहाँ पे कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र होते हैं या सी वाटर बॉडीज, बहुत ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं, तो वहाँ पे जब तूफान आता है तो ये स्टॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोन्स और हरिकेन्स में, जो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं। Storms and cyclones and hurricanes cause damage to houses, trees, crops, animals and human beings. अब ये क्या होता है, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आसपास के घर, ह्यूमन बींग्स, प्रॉपर्टी, हर चीज़ को तबाह करके रख देते हैं। दे आर वेरी डिजास्टर्स। Wind has speed. Wind blows with a definite speed. तो विंड जिस तरीके से ब्लो करती है उसकी भी एक स्पीड होती है। Activity. Put some pieces of paper on a table under a slow moving fan. Observe how the pieces of paper flutter. Now turn the regulator in clockwise direction. What happens to the pieces of paper? You will see that pieces of paper get scattered here and there. This is because the wind blows with a fast speed. तो पंखा चलाइए लेकिन एक पे, पेपर के पीसेस रख दीजिए, हल्का फुल्का वो मूव करेंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसी में आप रेगुलेटर को जब क्लॉकवाइज मूव करोगे, 2 या 3 या 4 पे जब पंखे को चलाओगे, तो यही जो पेपर्स आपके पहले एक ही जगह पे हल्का हल्का हिल रहे थे वो इधर उधर स्कैटर होने लग जाएंगे। रीजन, क्योंकि विंड की एक स्पीड होती है जिसपे वो ब्लो करती है। Now wind has a direction also. Activity. Take a handful of sand, raise your hand, drop the sand on the ground slowly. See which way the sand falls. If the sand falls on the side, it shows that the wind is blowing in that direction. If it falls straight on the ground, it means no wind is blowing. तो कैसे आपको पता चलेगा कि विंड का एक डायरेक्शन भी होता है मूव करने का? सैंड लीजिए, उसको धीरे धीरे अपने हाथ से एक स्पेसिफिक हाइट से छोड़िए। अगर जिस भी साइड में आपका सैंड उड़ता हुआ जाएगा, विंड का डायरेक्शन भी उसी साइड का होगा। और अगर आपका जो भी सैंड है वो बिल्कुल सीधे सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सो विंड हैज स्पीड एंड विंड ऑल्सो हैज डायरेक्शन। Weathercock. Look at the picture. This is a weathercock. It is fixed high up on a building. The beak of the cock shows us the direction in which the wind blows. You can also tell which way the wind is blowing by holding up a ribbon. The direction in which the ribbon flutters shows the direction of the wind. अब आपका क्या है, एक वेदरकॉक होता है जिसका फोटो यहाँ पे आपको गिवन है। ये आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फिक्स्ड रहता है, जो आपको विंड का डायरेक्शन बताता है, विंड की स्पीड भी बताता है। अब इसी में अगर आप एक रिबन को भी अटैच कर दोगे तो जिस डायरेक्शन में आपका रिबन फ्लैटर करेगा उसी साइड पे आपका विंड का डायरेक्शन भी होगा। Now let's see what are the uses of wind. Wind is very useful for us. It can do many things for us. For example, wind moves a glider, wind makes a boat sail, wind runs a windmill and wind helps a kite to fly. अब आपको क्या है, क्या क्या आपके हेल्प करता है? आपका जो गर्डल होता है या ग्लाइडर होता है, हवा की वजह से मूव करता है। आपकी सेलिंग बोट्स होती हैं, हवा नहीं चलेगी तो सेलिंग बोट्स भी सेल नहीं कर पाएंगी। कपड़े आपके सूख रहे हैं, वो हवा की वजह से हो रहा है। काइट आपकी उड़ रही है, वो भी हवा की वजह से हो रहा है। Wind helps us to dry wet clothes. Wind carries small seeds to distant places which further grow into plants and trees. And wind also helps in winnowing. तो आपके गीले कपड़े भी हवा की वजह से सूख रहे हैं। जो कुछ आपके सीड्स होते हैं हल्के हल्के, हवा के झोंके की वजह से वो दूर कहीं पे चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। सो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ विंड्स, और विंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। Glimpse of chapter. Water vapor formed when water gets heated. Wind, moving air. Breeze, a gentle wind. Storm, a very strong and noisy wind. तो water vapors होते हैं जब आप किसी भी पानी को भापते हो या फिर आपके गीले कपड़ों से जो आपके निकलते हैं, evaporation होती है, उसमें आपके vapors mixed होते हैं। फिर आपका wind होता है moving air, breeze होता है gentle moving air, and then you have storm जो आपकी fast and furious moving wind होती है।
Summary: air contains water vapor, dust, smoke and germs. Moving air is called wind. Wind blows with a speed. Wind blows in a definite direction and wind is very useful to us. तो आपका air में water vapor, dust, germs, smoke ये सब मिला हुआ होता है. Then you have wind, the moving air. Gently moving air is known as breeze. यही fast हो जाती है wind की speed तो we call it storm. और कोस्टल एरियाज में स्टॉर्म्स आगे आपके फर्दर दे गेट कन्वर्टेड इनटू साइक्लोन्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स और ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं. थिंक एन आंसर. A, take the correct answer. Number 1, when a sick person sneezes, he or she releases germs. छींक आपको है, खांसी जुकाम हो रखा है तो जैसे ही आप छींकते हो हवा में आपके germs सस्पेंड हो जाते हैं. B, take the correct words given in the brackets. Number 1, we cannot see air. फील आप कर सकते हो, जब आपकी तरफ हवा आती है तो आपको फील हो सकती है बट आप उसको देख नहीं सकते हो. C, cross the pictures that make the air dirty. आपको एक बता दिया जाएगा. सबसे पहला क्या है, आपका कुछ चीज जलाई जा रही है, इससे आपका स्मोक निकलता है. नॉट एट ऑल गुड. रेजिडेंशियल एरिया भी आसपास है तो बहुत ही ज्यादा खराब है ये चीज, इस पे आप क्रॉस कर दीजिए, ये एयर को डर्टी कर देगा. D, take the things that make use of wind to work. Windmill. Windmill में नाम में ही wind आ रहा है तो इसको wind की जरूरत तो होगी ही होगी, तो इस पे आप टिक कर दीजिए. E, answer the following questions. Number 1, how does air get dust particles and smoke? अब ये अभी हमने चैप्टर में ही पढ़ा था. When people clean the roads, factories releases smoke, people puff cigarettes and बीडीज, उससे आपके dust particles और smoke हवा में mix up हो जाते हैं. F, say yes or no. Number 1, a breeze makes the weather pleasant. तो breeze आपकी gently moving air होती है. It will always make your weather pleasant. अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो आपको अच्छा ही लगता है. So just say yes. G, if you solve the following puzzle, you will get the name of a very powerful and wind in सर्कल्ड लेटर्स डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आपके 7 अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, वो आपके नंबर के हिसाब से आप लिख दीजिए. बीच में आपका बन के आएगा टॉर्नेडो सर्कल्स में, जो आपका फास्ट मूविंग स्टॉर्म होता है. Science Club. We should breathe in clean air to stay healthy. Make a poster to show different things you can do to keep the air clean. Display your poster in the class. अब एक चार्ट बनाइए और उसमें आप वो सब चीजें लिखिए जो आपकी हवा को साफ बनाते हैं और क्लास में उसको डिस्प्ले करिए. Talk about clean and fresh air is essential for all. Discuss in the class. Grouping करिए क्लास में या इंडिविजुअली बोलिए और बेनिफिट्स बताइए क्लीन और फ्रेश एयर के. Cognitive corner. Air carries a smell from one place to another. Similarly, it can carry dust particles and smoke. It can also carry germs which are too small to be seen by eyes but which can cause several diseases. Whenever a person suffers from flu, the people in his family and others close to that person usually fall sick too. This is because the germs travel from the sick person through air and enter the healthy person's body. Whenever a person sneezes or coughs, germs travel into the air from the sick person's nose and mouth. How can we prevent germs from spreading in this way? तो अब आपको स्मेल आ जाती है हवा के थ्रू ही, जब कुछ अच्छा खाना या कुछ बेकार स्मेल भी होती है तो सिमिलरली आपके डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स ये भी सस्पेंड होकर आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं. तो किस तरीके से आप बच सकते हो? सबसे पहला तरीका क्या है, जब भी आप कफ कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो, यूज अ हैंकरचिफ और आप मास्क पहन के रखिए, इससे आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं. लाइफ स्किल्स. Color the bubbles that contain actions you should follow to keep the air clean. Plant trees सबसे बेस्ट है हवा कूलिंग करने के लिए, इसको अच्छी तरीके से कलर कर दीजिए जिन पे आपको लगता है कि वो हवा को हमेशा साफ रखेंगे. सो प्लांट ट्रीज इज अ गुड ऑप्शन, उसको कलर कर दीजिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. गो थ्रू दिस चैप्टर thoroughly and all the exercise questions. Please do it.